Hi guys, welcome back to my channel. Myself Supriya and today I am back with the most requested video from my student. So the video is Just Before Recess and it's an fictitious or an imaginative story. So I hope you all will love the video. So let's get started. Before beginning the video, I would request you all to please subscribe my channel so that I get motivated and enhance you all with much interesting videos. मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि आप लोग वीडियोस देख तो रहे हो बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो. It feels something bad. मुझे हर्ट होता है. So please do subscribe my channel so I get encouraged and enhance you all with much interesting videos. Just Before Recess is a story written by James Van Pelt. James Van Pelt was an American scientist as well as a great writer of his era. He was also known for his fictitious writings. So let's see the story. Before Recess is a short story about a son and a boy, Parker. Have you ever noticed sun? Can you imagine sun on a desk? Is it possible? No. So this is why this story is known as a fictitious story which cannot happen in a real life. So let's see the story. Parker kept a sun in his desk. He fed it gravel and twigs and once with his gum when it lost its flavor. मतलब पार्कर अपने डेस्क के नीचे किसको रखा था? सन को. और उसको वो क्या खिलाता था? ग्रेवल्स मीन्स पत्थर, छोटा छोटा पत्थर. ट्विग्स मीन्स टहनी, सूखा हुआ डाली का टहनी. एंड एक बार वो क्या खिलाया था? उसका च्युइंग गम जिसका फ्लेवर लॉस्ट हो गया था. हैव यू सीन दिस टाइप ऑफ डेस्क? इफ़ यस, सो इसी टाइप के डेस्क के नीचे वो सन को रखा था. Varney's desktop felt good against his forearms and the desk toasty metal bottom kept the chill off his legs. See, now we all know that in America is too cold. Yes, so जब पार्कर अपना डेस्क के नीचे सन को रखा था तो सन का जो हीट था उससे क्या हुआ? उसके जो हैंड्स थे वो भी ठंड से बच रहे थे and his legs which was beneath the desk was protected from the chilling cold. Mr. Earl was grading papers at the front of the class. Every once in a while glazing up at the third graders to make sure none of them were talking or passing notes looking out of the window. So in the class of Mr. Earl, मिस्टर अर्ल क्या कर रहे थे? वो कॉपी करेक्शन कर रहे थे क्लास में और एक एक बार वो नज़र उठा करके उन बच्चों पे, थर्ड ग्रेड बच्चे पर देख रहे थे कि कहीं वो बात तो नहीं कर रहे या नोट्स एक दूसरे से पास तो नहीं कर रहे या विंडो से बाहर तो नहीं देख रहे एज यूजुअली द थर्ड ग्रेड स्टूडेंट्स डू इन द क्लास. Would quickly shift his gaze down to his desk book so Mr. Earl won't give him the glare, a sure sign that Parker's name would soon go up on the board with the other kids who had lost their lunch privilege for the day. अब see what happens. पार्कर वो अपने टीचर से बचने के लिए जब भी उसके टीचर आँख उठा करके देख रहे थे, पार्कर क्या कर रहा था? तुरंत प्रिटेंड कर रहा था बुक को पढ़ने के लिए. बिकॉज पार्कर नोज़ वेरी वेल कि उसका भी चांस हो सकता है कि बोर्ड पे उसका नेम जाए और उस दिन का लंच वो इन्जॉय ना कर सके. बिकॉज द पनिशमेंट कि जिसका जिसका नाम बोर्ड पे जाएगा दे विल नॉट इन्जॉय द लंच ब्रेक. सो पार्कर वॉज स्केयर्ड ऑफ इट एंड वो जब भी उसका टीचर देख रहे थे उसकी तरफ वो तुरंत बुक खोल कर पढ़ने लग जा रहा था. फील मिस्टर अर्ल्स अटेंशन पास ओवर हिम लाइक अ सर्च लाइट. मतलब पार्कर को ऐसा फील हो रहा था कि जो मिस्टर अर्ल है उनके टीचर, उनका आँख ऐसा पार हो रहा है जैसा सर्च लाइट तुरंत देख करके पार होता जाता है. हैव यू सीन अ सर्च लाइट? इट्स मेनली ऑन द टॉप ऑफ अ टावर और सम एयरपोर्ट्स जो घूमता है so that they can track an aeroplane or something. So that is known as a searchlight. Slipping a pebble out of his pocket, Parker carefully lifted his desktop a quarter an inch and slipped the rock in.
It made a tiny clink when it dropped to the bottom. अब पार्कर क्या किया, वो धीरे से अपना डेस्क खोला और क्या किया, अपने पॉकेट से एक पेबल निकाला और डेस्क के अंदर डाल दिया, सो दैट ही कुड फीड द सन. अब वो क्या, थोड़ा सा हल्का सा आवाज़ के साथ वो पत्थर नीचे डेस्क पे चला गया. He leaned the desk away from him until he heard the pebble roll towards the sun, followed by his tiny hiss that meant the rock had vanished into it. अब क्या किया पार्कर, जैसे वो पत्थर अंदर डाला वो अपना डेस्क को थोड़ा सा आगे किया, अपने से दूर किया, सो दैट जो पत्थर है, जो पेबल है, वो कहाँ जाए, सन के पास जाए और वो सन पत्थर को खा जाए. एक आवाज़ के साथ क्या हो गया, वो पत्थर वैनिश हो गया. इट मीन्स द सन एट द पेबल. 2 days ago he had opened his desk to put his lunch in, but instead of the pencil box and tissue box, the books he expected to see, a cloud swirled in the space at its center, a dull pulsing red glow. Now see, अब ये कुछ दिन पहले का है, पहले का सीन है. कुछ दिन पहले जब पार्कर अपना डेस्क में अपना लंच बॉक्स, पेंसिल बॉक्स, टिश्यू बॉक्स रखने जा रहा था, तब वो क्या देखता है, एक सर्कल सा, कोई भी एक गोल सा चीज़ वहाँ घूम रहा है उसके डेस्क पे. वो तो पहले देख करके शॉक्ड हो जाता है, बट देन ही ग्रेजुअली रियलाइजेस दैट व्हाट इट एक्चुअली इज. द डेस्क एंड लुक्ड अराउंड टू सी इफ एनीवन एल्स had noticed. An hour later, the dusty swirl in his desk had contracted to a bright spot in the middle. He cautiously moved his hand towards it. Now see, क्या हुआ, कुछ देर बाद आफ्टर एन आवर वो क्या किया, फिर से अपना डेस्क उठा करके देखा, तो वो क्या देखता है, वो छोटा सा जो सर्कल था वो सेंटर में आ गया उसके डेस्क के, और वो बड़ा, थोड़ा सा बड़ा हो गया साइज़ में. वो ये देख करके तुरंत अपना डेस्क नीचे कर देता है और इधर उधर देखता है कि कोई और तो नोटिस नहीं किया दैट स्मॉल सन इज अंडर हिज डेस्क. Cautiously moved his hand towards it. At first he felt only the heat, but when he got within a few inches, the skin of his palm began to sting, like the flesh was pulling away. He snatched his hand back, then tried pencil. When the point moved close enough, the pencil tugged towards the sun, then snapped out of his finger into the tiny light, brightening it slightly in the process. Now see क्या हुआ, अब पार्कर क्या किया, अपना डेस्क के अंदर पहले अपना फिंगर डाला. फिंगर डालते ही उसको कैसा फील हुआ, एज इफ उसके हैंड में कोई डंक मार रहा हो. ठीक है, तो वो ये फील करके तुरंत अपना हाथ बाहर निकाल लिया. फिर क्या हुआ, वो अपना पेंसिल अंदर डाला डेस्क के. जैसे वो अपना पेंसिल अंदर डाला तो उसको फील हुआ कि कोई उसका पेंसिल उसके हाथ से छीन लिया हो, स्नैच कर लिया हो. बट कुछ देर बाद उसको ऐसा फील हुआ कि उसका पेंसिल अब तो गया. ही अगेन पुल्ड आउट हिज हैंड. Now the sun was as large as a golf ball. When Parker rolled a marble across his desk, its patch would curve towards the sun within, sometimes circling several times before resting exactly above. अब क्या हुआ, धीरे धीरे वो सन बड़ा होते 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 एक गोल्फ बॉल जितना बड़ा हो गया. जब भी पार्कर कुछ भी स्टोन्स डालता था वो सन तुरंत घूमने लग जाता था. जब तक ना वो स्टोन को खा ना ले तब तक वो घूमता था और अचानक से रुक जाता था. इट मीन्स दैट ही हैज़ बीन ईटन दैट थिंग, द स्टोन. Again coming back to the same day, Parker, Mr. Earl said, "Your reading group is waiting for you." In the back of the class, 3 reading partners sat on the mat, their books on their laps. Parker pushed away from his desk and joined them. Now see, coming back to the same day, अब क्या हुआ, टीचर नोटिस करता है पार्कर को एंड वो पार्कर को बोलता है दैट पार्कर, नाउ इट्स योर टर्न टू रीड और गो थ्रू द बुक. तो पार्कर क्या करता है, वो पीछे देखता है और पीछे देख करके उसको क्या देखता है, उसके 3 फ्रेंड्स उसका वेट कर रहा है फॉर रीडिंग. सो ही
He gets up from the desk and comes out from it. It's your book, Mr. Earl said, his eyebrows contracting into a single line above his eyes. Parker shrugged. Mr. Earl growled. You need to be more responsible, young man. Go, get your book. Now see what happens. Mr. Earl Parker से पूछता है that where is your book? और ये पूछते पूछते उसका eyebrows contract हो जाता है like this. And he asks, where is your book? You should be much responsible. Go and get your book. जाओ अपना बुक जा करके लेकर के आओ. ये सुनते ही पार्कर थोड़ा सा डर जाता है. Now see what happens. Students looked on, relieved that Mr. Earl's attention was on Parker and not on them. I don't have it, sir, said Parker. It had disappeared into the sun along with everything else. Now see what happens. बाकी सारे जो बच्चे थे वो पार्कर की तरफ देख रहे थे और थोड़ा सा रिलीव्ड थे. क्यों? किस चीज़ के रिलीव्ड थे? कि अब मिस्टर पार्कर हम लोगों को नहीं देख रहे, बट उनका पूरा का पूरा कंसंट्रेशन किसके ऊपर है? पार्कर के ऊपर. अब पार्कर क्या रिप्लाई देता है? दैट आई डोंट हैव माई बुक. क्यों? उसके पास क्यों नहीं है बुक? बिकॉज इट इज़ गॉन विद द सन. सन हैज़ गॉबल्ड अप. वो सब कुछ खा लिया उसके बुक के साथ. See what happens. Mr. Earl's hand clenched slightly. Parker cringed as his teacher pushed away from his desk. Mr. Earl almost never left his desk. Students came to him. He didn't go to the student unless the infraction was terribly bad. Now see what happens. Slightly clench means ऐसा करना. ठीक है. अब मिस्टर पार्कर क्या हुआ? अपना फीस्ट को फोल्ड करते हुए डेस्क से उठ गए. और मिस्टर पार्कर एक ऐसा टीचर थे जो मोस्टली अपना डेस्क को छोड़ करके नहीं जाते थे. अगर स्टूडेंट्स को कोई डाउट रहता था या स्टूडेंट्स को कुछ करेक्शंस करना रहता था तो वो खुद सर के पास आते थे. बट कब वो उठते थे अपने डेस्क से? जब मैटर बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट होने वाला रहता था. इट मीन्स जब वो किसी को मारने वाले रहते थे या किसी को डांटने वाले रहते थे या किसी के ऊपर एक्शंस लेने वाले रहते थे, तभी वो अपना डेस्क से उठते थे. अब पार्कर को तो समझ में आ गया दैट ही इज़ गोइंग टू बी बैंग्ड वेरी बैडली. Man are irresponsible. Remember, you talk about responsibility on the first day of school. He looked at each of his students who nodded in turn. Isn't your book in your desk where it belongs? Now see what happens. Mr. Earl comes to Parker and says कि तुम लोग आजकल बहुत ही ज़्यादा इर्रेस्पॉन्सिबल होते जा रहे हो. याद है हम लोग स्कूल के फर्स्ट डे में किसके बारे में बात किए थे? रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे. और ये वो अपने बाकी सारे बच्चे को देख करके पूछते हैं, क्या तुम लोगों को याद है हम बोले थे ना दैट यू शुड बी मच रिस्पॉन्सिबल. सो ईच स्टूडेंट नॉडेड देयर हेड इन टर्न दैट येस सर यू हैव टोल्ड अस टू बी रिस्पॉन्सिबल. अब मिस्टर अर्ल पार्कर से पूछता है कि तुम्हारा बुक तो ज़रूर डेस्क पे होना चाहिए. सर सेड पार्कर. हाउ कुड ही एक्सप्लेन अबाउट द swirling dust, the pulsing red glow, the sun's pinpoint of light? Now see पार्कर क्या बोलता है? नो सर आई डोंट हैव इन माई डेस्क. अब पार्कर अपने टीचर को कैसे एक्सप्लेन करे दैट हिज बुक इज़ गॉन? कहाँ गया? द हीट ऑफ द सन हैज़ बर्न्ड द बुक. अब उसका बुक जल गया विद द हीट ऑफ द सन. सन का हीट से और उसके आसपास का जो एनवायरनमेंट था, जो स्वर्लिंग डस्ट था, घूमता हुआ जो डस्ट था सन के चारों ओर, उससे क्या हुआ? वो जल गया. Of course it is. That is where your book should always be. Everything in its place. A place for everything. Isn't that right? His question sounded like an accusation. अब देखो, अब मिस्टर अर्ल पार्कर से बोल रहा है तुम्हारा बुक डेस्क में ही होना चाहिए. क्यों? तुम्हारा बुक का राइट प्लेस कौन सा है? डेस्क. तो वो क्यों नहीं है वहाँ? वो ऐसे पूछ रहे हैं एज इफ वो उसको एक्यूज़ मीन्स उसको डांट रहे हो कि कहाँ गया तुम्हारा बुक तो डेस्क में ही होना चाहिए. एवरीथिंग शुड बी इन देयर ओन प्लेस. Nodded, but my book isn't there, Mr. Earl.
अब पार्कर क्या किया, वो ऐसे कर रहा है, बट nodded means like this. So he said, no, my book is not there. The teacher took 2 long strides and stood beside Parker's desk. Before the boy could speak, Mr. Earl threw the desktop open. For a second he stared into it. A white glow reflected off his face. What is this? He said as he reached towards the brightness. Now see what happens. Mr. Earl अपना बड़े बड़े पैरों से 2 कदम बढ़ाए और तुरंत ही पार्कर्स के डेस्क के सामने जा कर के खड़े हो गए और वो क्या किए, डेस्कटॉप को उठाए. इट मीन्स ही रेज द डेस्कटॉप. जैसे वो उठाए तो उसके अंदर क्या था, एक ब्राइट सा लाइट विच रिफ्लेक्टेड ऑन हिज फेस. अब वो ये देख करके पूछता है दैट व्हाट द हेल इज इट, व्हाट इज दिस. पूछते साथ ही वो उसे छूने के लिए जाता है. मिस्टर अर्ल उस चमकती हुई चीज़ को छूने को जाता है. मिस्टर अर्ल पार्कर started to say but it was too late. पार्कर बोलने ही जाता है कि सर बी केयरफुल, मिस्टर अर्ल बी केयरफुल, डोंट टच इट. बट उसके बोलते बोलते बहुत ही ज़्यादा लेट हो जाता है और मिस्टर अर्ल उस सन को टच कर चुके होते हैं. टीचर screeched before lurching against the desk. He went down quickly, his feet vanishing to the desk glass. जैसे ही वो छूते हैं उसका हीट से टीचर चिल्लाते हैं. We all screech. सेम थिंग. द टीचर ऑल्सो स्क्रीच्ड और वो पीछे हट जाते हैं. और उससे क्या होता है, अब टीचर को तो चोट लगता है, ही गेट्स बर्न. और ये देख करके वो उस डेस्क से आगे बढ़ जाते हैं. ठीक है, वो उस डेस्क को छोड़ करके आगे चल देते हैं. साइलेंस फिल्ड द रूम. पार्कर स्टूड वॉकड बैक टू हिज डेस्क. द सन विदिन हैड ग्रोन इट्स हीट, baking like a tiny oven. He closed the top which snapped down hard on its own at the last moment. अब क्या हुआ, पार्कर जहाँ था वहाँ से वो खड़ा हुआ, उठा और जाकर के अपना डेस्क पे गया और डेस्क पे जाकर के वो सन को देखता है तो सन इतना ज़्यादा हीट हो गया था एज इफ इट लुक्स एज एन ओवन. अगर हम लोग केक का बैटर डालें उस पर तो वो केक बन जाता. सो वॉट ही डिड, ही क्लोज्ड द डेस्कटॉप. मतलब वो जो डेस्कटॉप रहता है उसको वो बंद कर देता है सो दैट इट रिमेन लिमिटेड टू हिम एंड टू द सन. The student hadn't moved. Parker looked at them. They looked at him. Over the intercom, a bell softly chirped. "Recess," said Parker, and they all ran outside to play. Now see, अब बाकी सारे जो स्टूडेंट्स थे उन लोगों को उतना असर फर्क नहीं पड़ा, बट they were looking at Parker and Parker was also looking to the children. तब तक क्या हुआ, एक सॉफ्ट सा बेल रिंग हुआ. ठीक है, और पार्कर क्या बोला, yes this is the time for recess, so let's go out to play. और सारे बच्चे वहाँ से चले गए, क्लासरूम से चले गए to enjoy their recess. So this was the story of just before recess. What happened? Enjoyed the video? If so, then please do hit the like icon and don't forget to subscribe my channel. I have noticed कि आप लोग मेरे videos देख तो रहे हैं but subscribe नहीं कर रहे हो. It's my earnest request that please do subscribe my channel so that I get motivated and enhance you all with much interesting videos. Only entertaining is not the purpose. My purpose is to convey some message or convey some knowledge in English with entertainment. Thank you.